తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం. నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని. ఏది గీకు బదులు ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం. నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. అల్టిమేట్గా వెంకటేశ్వర స్వామి మన రాష్ట్రంలో ఉండడం మనందరి అదృష్టం. ప్రపంచం అంతా మన దగ్గరికి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. అలాంటప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఇది కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. Baseless allegations, shocking allegations, like saying that in TTD, while YCP is in governance, they have damaged the decorum and sanctity of the Tirumala Tirupati Devasthanam, and they have gone to the extent of criticizing and commenting wild comments like, while preparing Somvari prasadams and laddus, animal fat being used. This is ridiculous. It's a very serious thing, and we can't, Lord Venkateshwara is believers of Lord Venkateshwara always have greater faith in the system which was running the Devasthanam, and if Jagan and the gang around Jagan has done these kind of things, the serious investigation is needed, and those people involved must be punished, and this is unacceptable because the belief system, we should not allow these kind of things to happen in any kind of belief system. Lord Venkateshwara is a God who has been believed, who has devotees across India, and we feel that the government, Chief Minister of Andhra Pradesh should not make statement and leave it, but he should take right actions. Really, I have tasted today regarding the laddu, which was earlier prepared during the previous regime, was added with animal fat. Now presently, as of my taste, it is really wonderful, and the taste of the ghee is really good. I think it's not proper. That's not the proper way. But I don't think so it's true as well. Because the priests who are in TTD, they are more devotional to the God. So I don't think so it has happened. भगवान का जो प्रसाद है, कितने सारे लोग आते हैं, कितना हजार आदमी आते हैं, हजारों किलोमीटर से आते हैं, पूरा भगवान को देखने के, भगवान का प्रसाद खाने के लिए आते हैं. पवित्र भगवान का आदमी लोग देखे, आदमी पहचानना है वो. 90% of the suppliers are the same from 2014, 19 to 1924. Same suppliers, other than one or two people, suppliers have been changed. Number one. Number two, Mr. Ashok Singhal was the EO, Executive Officer of the TTD in Chandrababu Naidu's term. He continued after 1.5 years or 2 years in Jagan Mohan Reddy's regime also. So you just tell me, Mr. Ashok Singhal was continued as a EO for 2 years in Jagan Mohan Reddy's regime. But how can Chandrababu Naidu say that something happened in 5 years? How? And number two. Number three, Mr. Chandrababu Naidu is not able to say what is animal fat. How he has come to a conclusion like that? It is a political allegation. It is a very intolerable or highly objectionable. Mr. Chandrababu Naidu is giving this statement. He must do something. He must do an inquiry. Okay. He must suspend some priest, suspend the EO, whoever may be there at that time. If he is really having some proof or evidence, without that, he has almost the emotions, the sentiment of many people. He has given a very bad this one. He is whatever he talks there is no credibility. I am telling. After the cabinet meeting, I am asking you one more question. Now, one more thing. That report was come in almost 15-20 days back. Today only he released it because
He wanted to bring something, that liquor policy in his cabinet. He wanted to divert the people's attention. See, I'm telling you one thing. I am also a Lord Venkateswara's devotee. There are thousands and thousands of people, crores of people at the globe. They are all devotees. While talking about this issue, Mr. Chandrababu Naidu must take into his this one very carefully. You know, we are talking about Chandrababu Naidu. What he did in his regime, he almost taken Mr. Amit Shah. He was what happened? He was attacked by his map. What type of this one he has done in his regime in 2014 to 2019? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर जिस तरह से खबरें आधी अधूरी जानकारी के आधार पर फैल रही हैं, भगवान श्री वेंकटेश्वरा में आस्था रखने वालों को जानबूझकर आहत किया जा रहा है। रिपोर्ट क्या है, कितनी प्रामाणिक है, अभी यही सुनिश्चित नहीं हुआ है और मीडिया में लड्डू में बीफ मिले होने की बात को बढ़ा चढ़ाकर सनसनी फैला दी गई है। इसे लेकर जो राजनीति हो रही है वो बेहद खतरनाक इरादों से भरी लगती है। मामला संवेदनशील है, इसलिए हमने अपनी तरफ से जितनी भी जानकारियां हो सकती हैं, जो छपी हैं, उन्हें शामिल करने की कोशिश की है। आप धीरज के साथ देखिए, उबलने के लिए नहीं बल्कि जानने के लिए क्या वाकई में मिलावट की बात सही है, जांच किससे कराई गई, क्यों कराई गई, इसे लेकर भी सवाल है। टेंडर रद्द कर नए टेंडर जारी होंगे, इस पर भी बात हो रही है। तो संदेह की सुई किसी और पहलू पर चली जाएगी कि कहीं कुछ और खेल तो नहीं है। वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। अब दो सवाल हैं, फॉरेन फैट को एनिमल फैट ही क्यों मान लिया गया और एनिमल फैट का मतलब बीफ से ही क्यों लगाया गया। यह मिलावट किस स्तर पर हुई है, इससे भी जुड़े सवाल हैं जिनके ठोस जवाब नहीं हैं। सवाल है कि लड्डू का सैंपल गुजरात की प्रयोगशाला में जांच के लिए क्यों भेजा गया, जबकि हैदराबाद में एफएसएल जैसी राष्ट्रीय महत्व की विश्वसनीय संस्था है और हैदराबाद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का दफ्तर भी है। अब देखिए, इतना डिटेल में जानने पर आप उबल नहीं पाएंगे, लेकिन आपके भीतर अगर गुस्सा भड़काया जा रहा है तो क्या आपको सारी बातें नहीं जाननी चाहिए। घी का मामला है और आपको सांप्रदायिकता की आग में झोंका भी जा रहा है। इस मसले पर आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई, मीडिया में खबर आग की तरफ फैल गई। मंदिर प्रशासन ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। क्या मंदिर प्रशासन को अपनी तरफ से बात नहीं करनी चाहिए? इतना बड़ा मामला है तो यही बात आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्यों नहीं बताई? क्यों उन्होंने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विधायकों से यूं ही कह दिया कि प्रसाद में एनिमल फैट मिला है? नायडू ने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, बीफ का नाम नहीं लिया। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिम्मेदारी के साथ जनता को उन्हें सूचना देनी चाहिए। जुलाई महीने में मुख्यमंत्री के पास अगर रिपोर्ट आ गई थी तो अगस्त भर चुप्पी क्यों साधी गई? आधा सितंबर भी बीत गया तब जाकर बताया गया। क्या ऐसे मामलों पर मुख्यमंत्री को सभी तथ्यों के साथ और सवालों के जवाब के साथ पेश नहीं होना चाहिए? आईटी सेल और गोदी मीडिया की सक्रियता को देखकर किसी को भी सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माहौल बनाने के लिए यह सब किया जा रहा है। चुनाव के बाद से ही लगातार एंटी मुस्लिम मुद्दों की खोज हो रही है ताकि जनता को भीड़ में बदलकर रखा जा सके। वो आस्था को ठेस पहुंचाने के नाम पर हर वक्त ही उबलती रहे। इसीलिए जरूरी है कि पहले सभी तथ्यों को ठीक से जानिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि अगर लड्डू को लेकर किए जा रहे दावे सही हैं तो पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर मनगढ़ंत तरीके से दावे किए जा रहे हैं तो इसके लिए करोड़ों श्रद्धालु ऐसा करने वालों को माफ नहीं करेंगे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने कहा है कि मंदिर की आस्था पर आंच नहीं आनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को लगता है कि रिपोर्ट सही है तो उन्हें हाई लेवल जांच के आदेश देने चाहिए और सीबीआई को तफ्तीश करनी चाहिए। मगर सवाल और भी हैं, जैसे क्या रिपोर्ट किसी और एजेंसी से भी तैयार करवाई गई है? 2 महीने पुरानी रिपोर्ट अभी क्यों जारी की जा रही है? सोशल मीडिया पर रिपोर्ट के 2 पन्ने वायरल हैं। कहा जा रहा है कि एक ही रिपोर्ट है मगर दोनों में लैब टेस्ट का रेफरेंस नंबर अलग अलग है। सवाल यह भी है कि यह जानकारी
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्यों नहीं दी गई? यह भी सवाल है कि जब एनिमल फैट, बीफ टैलो या फिश ऑयल की विशेष पुष्टि दोनों ही रिपोर्ट में नहीं है, फिर यह बवाल कौन खड़ा कर रहा है? यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस नेता का कहना है कि 2 तरह की रिपोर्ट वायरल हो गई है और दोनों में बीफ टैलो या फिश ऑयल की पुष्टि नहीं हुई है। तो यह बवाल कौन खड़े कर रहा है? कैसे यह खबर चारों तरफ आग की तरफ फैल गई? मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक बार बयान दिया, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्हें इन भ्रांतियों को दूर करना ही चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और बताया है कि मंदिर में किस तरह से हर हाल में अनिवार्य रूप से नियमों का पालन होता है। हर 6 महीने पर नए टेंडर निकलते हैं और यह नियम दशकों से चला आ रहा है। हर रोज मंदिर में घी लाने वाले टैंकर अपने साथ NABL यानी राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला बोर्ड का सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। यह सर्टिफिकेट होगा तभी ट्रक मंदिर में आएगा। इसके बाद TTD हर टैंकर से 3 सैंपल लेकर उनका टेस्ट करती है। एक भी सैंपल फेल हो गया तो टैंकर वापस कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नायडू के कार्यकाल में 14 से 15 बार टैंकर वापस भेजा गया है। जगन रेड्डी के भी कार्यकाल में 20 बार टैंकर वापस भेजा गया है। यह सब एक स्थापित प्रक्रिया के तहत किया ही जाता है। अगर सैंपल खारिज हो गया तो उसका मतलब है उसका इस्तेमाल हुआ ही नहीं होगा। All the 3 tests conducted by TTD, only when they pass out, only then the tanker is good to go into the temple and where the ingredients could be used to make laddus or laddus or or different kinds of prasadams, what will later be distributed to the devotees. If any tanker fails on any of these tests, even if one test goes wrong, the tanker is stopped. Tanker is not permitted to go inside. Forget about anything else. Forget about consumption. It is not even permitted to go inside. It is rejected. जगन रेड्डी ने कहा कि मंदिर के बोर्ड में राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD बोर्ड के सभी सदस्यों को केंद्र और राज्य की सरकारों की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाता है। जिस रिपोर्ट को लेकर विवाद हो रहा है उसे अधिकारियों ने जारी किया, TDP के दफ्तर से जारी किया गया है, मंदिर बोर्ड ने नहीं। सवाल यह भी उठ रहा है कि गुजरात के लैब में इसकी जांच हुई है, जबकि मंदिर के पास अपने लैब हैं। श्रीनिवास जयाला की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए, 20 सितंबर यानी आज की ही है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पास अत्याधुनिक लेबोरेटरी है जिसमें खाद्य सामग्रियों की जांच की जाती है। इस लैब में हर बैच के लड्डू की जांच होती है। इस हद तक जांच होती है कि हर लड्डू में काजू, चीनी, इलायची की सटीक मात्रा होनी चाहिए और उसका भार 175 ग्राम ही होना चाहिए। यह सब सटीक मात्रा में होगा तभी इसे GI टैग दिया जाएगा। मतलब इस लड्डू को केवल मंदिर ही बना सकता है या मंदिर से ही यह लड्डू बना है, कोई और बनाकर नहीं बेच रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में भगवान श्री वेंकटेश्वरा की रसोई के प्रमुख R श्रीनिवासलू का बयान छपा है कि लड्डू में इस्तेमाल एक एक सामग्री को हमारी प्रयोगशाला में जांच की कठोर प्रक्रिया से गुजरना होता है। इस लड्डू को बनाने के लिए 600 कारीगर हैं। 2 शिफ्ट में लड्डू बनता है। हर दिन औसतन 3.5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। एक्सप्रेस ने लिखा है कि हर 6 महीने पर मंदिर घी खरीदता है। एक साल में 5 लाख किलोग्राम घी की खपत है। इंडियन एक्सप्रेस में भगवान श्री वेंकटेश्वरा की रसोई के प्रमुख R श्रीनिवासलू का एक एक शब्द इस विवाद के पीछे की खतरनाक राजनीति को उजागर कर रहा है। आपने सुना कि जो भी चीज लड्डू के बनाने में इस्तेमाल होती है उसकी जांच खुद मंदिर की प्रयोगशाला में की जाती है। उसके बाद भी लड्डू का सैंपल हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में जांच के लिए भेजा जाता है। यही नहीं, मंदिर का बोर्ड सफाई और सुरक्षा के लिए हैदराबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन से भी राय लेता है। और तो और मैसूर में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन का पालन करता है। अब आप ही बताइए,
किस संस्थान का लड्डू इतनी जांच और इतने दिशा निर्देशों के पालन से बनता है? जहां इतना ध्यान रखा जाता हो वहां इसके बाद भी क्वालिटी में गिरावट हो सकती है, मिलावट हो सकती है, तब तो क्या ही कहा जा सकता है। अब यहां पर हम पिछले साल अगस्त और इस साल जुलाई में छपी कुछ रिपोर्ट का जिक्र करना चाहते हैं। अगस्त 2023 में द हिंदू में एक रिपोर्ट छपती है कि FSSAI जो खाने की चीजों के मानक तय करती है, तिरुपति में आधुनिक लेबोरेटरी स्थापित करने पर विचार कर रही है, जिससे श्रद्धालुओं को अच्छी गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन मिले। तिरुपति के अधिकारियों ने आधुनिकतम फूड टेस्टिंग लैब के निर्माण की इच्छा जाहिर की। इस साल जुलाई में फिर से खबरें छपती हैं कि FSSAI तिरुपति में लेबोरेटरी बनाने जा रही है, जहां प्रसादम और अन्य प्रसादम में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की जांच की जाएगी। TTD के एग्जीक्यूटिव अफसर जे श्यामल राव ने इस मामले में 15 जुलाई को FSSAI के साथ एक समीक्षा बैठक की। हमने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से बताया कि मंदिर के पास अपना अत्याधुनिक लैब है, फिर FSSAI लैब बनाए, इसके लिए मंदिर के अधिकारी क्यों जोर दे रहे हैं? नायडू सरकार ने लड्डू के सैंपल की जांच बाहर से क्यों कराई? क्या लैब भी एक वजह हो सकता है इसके पीछे? अभी घी के बारे में जो तिरुपति में विवाद हुआ है वो मैं बतला देना चाहता हूं कि हम लोग कर्नाटका मिल्क फेडरेशन से, जो कर्नाटक सरकार की एक इकाई है, उससे हम लोग घी लेते हैं और यह गाय का घी देश का सबसे शुद्ध माना जाता है। और जब घी भेजते हैं तो शुद्धता का वो प्रमाण पत्र भी साथ में भेजते हैं कि सब कुछ निगेटिव है। ये सब हर महीने में हर बार जो गाय का घी आता है, नंदिनी घी उसका नाम है, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से हम लोग लेते हैं और फरवरी से 8,03,70,000 का हम लोगों ने घी लिया है। और एक बार में ट्रक आता है 8,010 किलो रहता है, उसमें कितना 47 लाख रुपया हम लोग एक बार में भेजते हैं। तो एक ट्रक वहाँ से आता है, महीने में 2 ट्रक घी आता है, करीब 94 लाख महीने का है और ये 8 करोड़ इस साल फरवरी से हम लोगों ने उनको जमा किया है। और इसके साथ आप लोग चाहिएगा तो बल्कि भेज रहे हैं, सब में निगेटिव लिखा हुआ है। वो टेस्ट करके भेजते हैं, उसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा लड्डू जो बनता है, तो लड्डू हम लोग हर 3 महीने पर दिल्ली से टेस्ट करा करके इसको मंगाते हैं, इसमें कोई भी सामान मिलावट का तो नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखने के बाद लगता है गोदी मीडिया, IT सेल आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। वो इतनी मेहनत नहीं करेगा, बस कुछ मिल जाना चाहिए जिससे एंटी मुस्लिम नफरत का भूत खड़ा किया जा सके। इतनी कठोर जांच प्रक्रिया के बाद तिरुपति मंदिर का लड्डू तैयार होता है, जिसकी इतनी साख है, जिसके बनाने के पीछे इतनी मेहनत है। अचानक से रिपोर्ट आती है एनिमल फैट मिला है। मंदिर की अपनी प्रयोगशाला ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। अगर कहा है तो मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। यह भी कि जब मंदिर की अपनी प्रयोगशाला है, हैदराबाद में प्रयोगशालाएं हैं, तो गुजरात की प्रयोगशाला में जांच के लिए क्यों भेजा गया? गुजरात की प्रयोगशाला के साथ साथ इन जगहों पर सैंपल क्यों नहीं भेजा गया? क्या चर्बी की मौजूदगी मिलावट के कारण थी या इन चीजों में चर्बी की मात्रा होती ही है? इन सब प्रश्नों का जवाब वैज्ञानिक ही हो सकता है। रिपोर्ट में कई प्रकार के तेलों के अलावा पशु के फैट होने की संभावना बताई गई है। यह साफ नहीं है कि जानवर की चर्बी से ही यह सब आया है। रिपोर्ट में एक सूची दी गई है कि फला चीजें हो सकती हैं। कहा गया है कि घी में फॉरेन फैट यानी घी के अलावा कोई अन्य सामग्री पाई गई है। 11 प्रकार के वनस्पति तेल के अलावा फिश ऑयल, बीफ टैलो यानी गाय की चर्बी और लार्ड यानी सुअर की चर्बी इस संभावित सूची में लिखे गए हैं। यानी पशु के फैट की जगह वनस्पति तेल की मिलावट भी हो सकती है। नारियल तेल, सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल वगैरह 14 प्रकार के फॉरेन फैट लिखे गए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने एनिमल फैट की बात की, जिसकी विशेष पुष्टि रिपोर्ट में नहीं है। नायडू के बाद मीडिया ने उसी एनिमल फैट को केवल बीफ और फिश ऑयल का नाम दे दिया। जिस बात की ठीक से पुष्टि भी नहीं हुई है, उसे लेकर हंगामा खड़ा कर दिया गया।
मंदिर समिति के पूर्व चेयरमैन भूमन करुणाकर रेड्डी का बयान है कि ये दावे झूठे हैं। जिन अफसरों ने घी सप्लाई का काम देखा है वो जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की पूर्व सरकार दोनों में काम कर चुके हैं। कभी भी गुणवत्ता का सवाल नहीं उठाया गया। वाईएसआर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक फायदे के लिए नायडू किसी भी हद तक जा सकते हैं। लड्डू में इस्तेमाल होने वाला घी राजस्थान और गुजरात की गायों के दूध से बनाया जाता रहा है। उनके बयान झूठे हैं। जगन मोहन रेड्डी को लेकर सांप्रदायिक मीम ट्रेंड होने लगे हैं। ईद पर नमाज की टोपी पहने हुए उनकी तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। रेड्डी का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ। अब आईटी सेल पर उन्हें ईसाई या मुसलमान बताकर खराब घी की सप्लाई को धार्मिक षड्यंत्र का एंगल दिया जा रहा है। इससे पता चलता है कि एंटी मुस्लिम जहर पैदा करने का प्रयास हो रहा है। जब तक इन सारी बातों की सच्चाई सामने आती, गोदी मीडिया और अखबारों के लिए यह खबर देश भर में फैला दी गई। एक दक्षिणपंथी हैंडल ने मांग की है कि जगन रेड्डी को जेल में डाल दिया जाए और मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से आजाद किया जाए। इस मुद्दे के बहाने मंदिरों के कंट्रोल का मुद्दा भी इसमें आ गया है। इस एंगल को भी ध्यान में रखना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने वादा किया है कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को मिल रहे आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। बीजेपी इस आरक्षण को खत्म करना चाहती है, लेकिन आईटी सेल कभी चंद्रबाबू नायडू की ऐसी तस्वीरों को वायरल नहीं करेगा, आप तक नहीं पहुंचाएगा, सनसनी नहीं फैलाएगा कि मुख्यमंत्री नायडू नमाज की टोपी पहने हैं, नमाज में शामिल हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं। जगन रेड्डी और नायडू की एक समान तस्वीरें मिल जाएंगी, मगर किसकी वायरल कराई जा रही हैं, इससे आप इसके पीछे की राजनीति और मकसद को समझ सकते हैं।